Hello everyone, welcome to Concept Corridor. I'm your host and host Yogita Dhami. So here we are for the NCERT solutions of chapter 4, the world of metals and non-metals for class 7 science. इस chapter का one shot already upload हो चुका है. If you have not seen, you are missing something big because there I have covered the chapter in one shot with lots of activities and experiment so that you can comprehend all the concept in one go. So don't miss it out. Link is given in the description. One good news for you. After the completion of first term syllabus, I will be covering the important questions from each and every chapter. So don't forget to subscribe and press the bell icon for important notification. Okay? So let's get started without wasting much time. Here we go with the first question. Which metal is commonly used to make food packaging material as it is cheaper and its thin sheet can be folded easily? बेटा खाना किस में पैक करते हैं सबको पता है, ये एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं उसको, है ना। एल्यूमिनियम फॉइल नाम से पता पड़ा, एल्यूमिनियम यूज हुआ होगा। सो एल्यूमिनियम इज द आंसर, नो डाउट। बाकी ऑप्शन ही पढ़ लेते हैं। कॉपर विच इज यूजुअली यूज्ड इन द वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी वाला। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही होती है तो कॉपर इज द कॉमन, कॉपर इज द आंसर। ठीक है, सो कॉपर इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सो नॉट फॉर दिस फूड पैकेजिंग। आयरन में जंग लग जाता है, नॉट पॉसिबल। गोल्ड हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। सो एल्यूमिनियम इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following metal catches fire when it comes in contact with water? वन शॉट पढ़ाते वक्त मैंने बताया था दिस इज द 100% वाला क्वेश्चन। एग्जाम में ये किसी न किसी फॉर्म में आएगा। बताओ कौन सा मेटल है जिसको हम स्टोर ऐसे करके रखते हैं कि वो एयर या वाटर के कॉन्टैक्ट में नहीं आ सके। कौन सा वाला है? सोडियम। कैसे स्टोर करते हैं इसको? इट इज डिप्ड इन केरोसिन, है ना। इसको स्टोर करने के लिए केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। बट अदर देन सोडियम देयर इज वन मोर मेटल। व्हाट इज दैट? Potassium. So potassium, sodium, these two are the metals which catches fire as soon as they come in contact with air or water. So that's why they are dipped in the kerosene and then they are stored. ठीक है? So sodium is the answer. Next, state true or false with reason. Okay, here with reason is the thing. बाकी true and false इतना tough नहीं है। देखो, aluminium and copper are examples of non-metals. पहले पता पड़ रहा है, it's a false statement because aluminium and copper they are very good metals, है ना। सो नॉन मेटल का करेक्ट करना है, यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स एंड स्टैचूज। सो ये द सेकेंड पार्ट इज करेक्ट। दीज आर यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स एंड स्टैचू बट दे आर नॉट नॉन मेटल्स। नाउ यू हैव टू जस्टिफाई दिस आंसर, यू हैव टू गिव द रीजन, है ना। सो व्हाट इज द रीजन यू विल गेट? बेटा एल्यूमिनियम कॉपर दे आर वेरी हार्ड सॉलिड्स, है ना। दे आर मैलिएबल। यहाँ पे क्योंकि हम यूटेंसिल और स्टैचू की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब दे कैन बी हैमर्ड टू डिफरेंट शेप्स। यस, सो दैट इज द रीजन। देखो एल्यूमिनियम एंड कॉपर, हियर आई हैव यूज्ड द सिंबल्स A capital L small, C capital U small. These are the symbols for aluminum copper. So aluminum and copper are metals because these are hard solids and can be transformed into different shapes due to malleability. Malleable are fallible. बताया था याद करने का तरीका। Next, metals form oxides when combined with oxygen. Metals form oxide. Metal, magnesium का हमने यहाँ पे experiment किया था, है ना। So magnesium when burned, so it means it is reacting with oxygen, it forms magnesium oxide. So correct, this statement is correct. The solution of which turns litmus paper red, blue litmus paper red. So red is the danger signal, मतलब वो acidic है इसका मतलब। But it is true? No. Metal oxides are basic in nature. वो basic होते हैं बेटा, वो acidic नहीं होते हैं। और बेस हमेशा क्या करता है? वो हमेशा रेड को सटल करके ब्लू में कन्वर्ट करता है ना। सो रेड टू ब्लू, यहाँ पर क्या है? यहाँ लिखा हुआ है ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन फॉल्स स्टेटमेंट, बट हमको करेक्ट क्या करना है? सिर्फ ये वाला पार्ट, बाकी सारा सही है। ठीक है, कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर सो दैट इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। हमें बताना पड़ेगा कि इट इज बेसिक इन नेचर सो दैट इट इज टर्निंग रेड टू ब्लू। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। यस, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, नो डाउट। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ट्रू। यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखा था। चलो ठीक है, अब जस्टिफाई कैसे करेंगे इस बात को? इसका रीजन भी तो देना है। ट्रू फॉल्स दोनों में ही आपको रीजन देना है ना। सो फॉर ट्रू के लिए क्या स्टेटमेंट होगा? बेटा ऑक्सीजन इज गैसियस इन नेचर और मेटल में कोई भी गैस नहीं है। मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड एक्सेप्ट वन, दैट इज मर्क्यूरी विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। गैस कोई मेटल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इज एन एलिमेंट इन गैसियस फॉर्म। और अगर एलिमेंट गैसियस फॉर्म में है इसका मतलब वो नॉन मेटल ही होगा। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर। यस, कॉपर्स के वेसल्स होते हैं, देखा होगा आपने, है ना। बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो,
बेटा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हम बॉइलिंग वाटर यानी हीट की बात कर रहे हैं ना, सो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, हीट आना चाहिए था, ठीक है। सो हाउ यू विल करेक्ट इट, कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर, दैट इज करेक्ट बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बस इलेक्ट्रिसिटी की जगह हीट वर्ड आपको यूज करना है, अंडरस्टूड। चलो मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, why are only few metals suitable for making jewelry, only few metals are suitable for making jewelry, that is true। सुना होगा आपने, गोल्ड प्लेटिनम इनकी ज्वेलरी होती है, आयरन की ज्वेलरी किसी ने सुनी है, नो। एल्यूमिनियम की ज्वेलरी, नो। why it is so, बिकॉज ज्वेलरी में हमें क्या चाहिए, शाइन, वो जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। ज्वेलरी को अगर हम कंटिन्यूसली पहने, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, एयर, मॉइस्चर एवरी टाइम, बट इट शुड नॉट कोरोड। बट हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, मैक्सिमम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, सो दे अंडरगो कोरोजन। यस, सो हमें ऐसे मेटल चाहिए जिनमें कोरोजन नहीं हो, और ऐसे सिर्फ देर आर ओनली फ्यू, दैट्स वाई। हैव अ लुक हियर, only few metals are suitable for making jewelry because most of the metals are highly reactive and undergo corrosion when they are exposed to air and water for long time. So only gold and platinum are inert, so that's why they are more often used for making jewelries. बेटा सिल्वर भी यूज होता है, लेकिन सिल्वर में भी कोरोजन होता है, वो ब्लैक पड़ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 1 with the jumbled name of metals and non-metals given in column 2. Okay, so यहाँ पे यूज है, ये आपका मेटल्स नॉन मेटल्स के नाम है जम्बल्ड फॉर्म में, डोंट गो फॉर दीज, जो कंसेप्ट आता होगा वही भूल जाओगे, ठीक है। तो पहले एक बार हम यूज पढ़ लेते हैं, अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो पता होगा यूजेस, ठीक है। देखो, यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ऑब्वियसली मेटल, कौन सा मेटल, कॉपर। कॉपर इज द मोस्ट कॉमन मेटल विच इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। अब कॉपर कहाँ पर है, कॉपर की स्पेलिंग सी नहीं है, सी नहीं है, ये वाला सी पीपी, हाँ ये वाला होगा, COPPER, कॉपर। सो सी इज द आंसर। नेक्स्ट, मोस्ट मेलिएबल एंड डक्टाइल, अगेन चैप्टर में प्रॉपर दिया हुआ है अलग से बॉक्स में, गोल्ड। यस, सो गोल्ड इज द आंसर। कहाँ पर है, ये वाला E, गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन इज द आंसर, एंड ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। कहाँ पर है ऑक्सीजन, बताओ, ऑक्सीजन ये वाला होगा, OXY, हाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सो A। नेक्स्ट, plants grow healthy when fertilizers containing it are added to the soil. बेटा fertilizers का one of the main component is nitrogen, because nitrogen is very much essential for the growth of the plant, ठीक है। nitrogen is a non metal। कहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यही होगा, ये नाइट्रोजन, D, डन। नेक्स्ट, यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, बेटा वाटर प्यूरिफाई करने के लिए एक गोली डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरीन की गोली, है ना, क्लोरीन डाल दिया, यस, क्लोरीनेशन प्रोसेस का नाम होता है। सो क्लोरीन, कहां पर है क्लोरीन, DB, दिस इज द आंसर, डन। चलो मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम एंड सल्फर। ओके, टू मेन एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर, दोनों को एक ही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, what are the main difference in the nature of the product form। बेटा when we burnt the magnesium ribbon and when we tried to burn the sulfur, what was the product, उसका नेचर कैसा था, फिर क्या हुआ, everything you have to summarize here, ठीक है। if you have seen the one shot you know that I have done this experiment, और इन experiments के मैंने छोटे छोटे शॉर्ट्स भी बना के अपलोड किए हुए हैं एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में, you can check it out, ठीक है। देखो, when we burnt the magnesium ribbon, what happened, we got the ash in this porcelain dish, ash is in solid form, so the product was in solid form when we burned the magnesium with the oxygen, yes, but in sulfur what you found, जब हमने सल्फर को गर्म किया था तो यहाँ पर से निकल रहे थे गैस, दैट इज द गैसियस फॉर्म, यस। सो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी इन द गैसियस फॉर्म, अंडरस्टूड। सो दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके अलावा व्हाट वाज द सेकंड डिफरेंस, व्हेन वी डिसॉल्व दिस एश इन द वाटर यू गॉट बेस एंड दैट टर्न्ड द रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। और यहाँ पर जब ये हमको गैसियस फॉर्म में जो प्रोडक्ट मिला था उसको हमने एक कंटेनर में ट्रैप कर लिया था गैस को, फिर हमने वाटर के साथ उसको मिक्स किया था, यस रिमेंबर, फिर क्या हुआ था, इट टर्न्ड द ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। अब बोलोगे मैम ये बड़ा कंफ्यूजन है, कैसे याद होगा कि ये बेसिक है, मैग्नीशियम वाला बेसिक है, फिर वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, एग्जाम में उल्टा लिख दिया तो। डोंट वरी, हियर आई एम गोइंग टू टेल यू द वन ट्रिक टू रिमेंबर दिस आंसर, ठीक है। देखो पहले तो समझो कंसेप्ट को, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गेव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, यस, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो कैसे याद करेंगे बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैंगो बार, क्या मिला हमें, मैंगो बार मिल जाता है, मैंगो बार। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर,
गॉट इट? सो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स यू मैंगो बार. ओके, याद रखो ऐसे. नाउ मैंगो बार क्योंकि पता पड़ गया भाई बेसिक है, तो क्या होगा? द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज मैंगो बार चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस टू ब्लू, है ना? बेस में हमेशा रेड लिटमस किस में टर्न होता है? ब्लू में टर्न होता है. एनी प्रॉब्लम नाउ? चलो आगे चलते हैं. नाउ सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड. अब ये कैसे याद करेंगे बेटा? ये है सोडी आंटी का बार, ये है सोडी आंटी का बार. ठीक है, अब बोलोगे मैम ये क्या है? देखो बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड को यूजुअली केमिस्ट्री में हम सोडी बोलते हैं. सोडी आगे जाके भी याद आएगा, आगे जाके भी ये काम आएगा जब सीनियर क्लास में जाओगे. ठीक है, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज सोडी, क्योंकि ये एसिड है तो आंटी, और बार ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड. रिमेंबर इन दिस वे. सो सल्फर व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन यू डायरेक्टली रीच टू सोडी आंटी का बार. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. सो सॉल्यूशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड चेंजेस ब्लू लिटमस रेड बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. सोडी आंटी का बार, सोडी is sulfur dioxide, anti is acid and B to red, blue to red. Clear? चलो next question. Complete the following flow chart. Flow chart is here. Some question marks वो आपको fill करने हैं. देखते हैं. So dash plus air plus heat gives you ash. Obviously magnesium. Magnesium को burn करके ही हमको ash मिला था, है ना? So यह magnesium M capital G small. This is the symbol. Ash क्या था? Magnesium oxide. यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए. ठीक है ना? मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर वाटर मिला दो तो क्या मिलता है आपको? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पता होना चाहिए. मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. किसी किसी को ये बड़ा डिफिकल्ट सा कंसेप्ट लग रहा होगा, मैम कैसे याद होगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड? इतना लंबा सा नाम है बेटा. ऐसा कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एसिड बेस वाले चैप्टर में. कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था? इफ यू नो द आंसर कमेंट विद द टाइम स्टैम्प. क्विकलाइम चूना, क्या था उसका केमिकल नेम? क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम मेटल, उसका ऑक्साइड. सो कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन वी डिसॉल्व इट इन वाटर तो क्या मिला हमें? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको कि हम लाइम वाटर बोलते हैं, है ना? सो किसी भी मेटल का ऑक्साइड इफ वी डिसॉल्व इट इन वाटर और वो डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब वो हाइड्रो ऑक्साइड ही देगा. ठीक है, ये कंसेप्ट है, याद कर लो. सो मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर डिसॉल्व हो गया तो आपको क्या मिला? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड. और मैंगो बार होता है तो बेसिक होता है ना? अच्छा, फिर क्या हुआ यहाँ पर? एड ब्लू एंड रेड लिटमस सेपरेटली. तो यहाँ पे एक तो दिया हुआ है चेंजेस रेड सॉल्यूशन इनटू ब्लू, तो ऑब्वियसली बेसिक इन नेचर. यहाँ पे ये बेस है, ठीक है. और यहाँ पर चेंज इन ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू में कोई सॉल्यूशन में चेंज होगा क्या? नो. सो यहाँ पर आपको लिखना है नो चेंज. दैट्स इट. ठीक है, चलो मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. You are provided with the following materials. Discuss which material would be your choice to make a pan that is most suitable for boiling water and why? बेटा pan किस क्या आपको प्रॉपर्टी चाहिए? पहली बात तो हार्ड होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है ना, हार्ड होना चाहिए. उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए, क्योंकि पैन है तो उसमें गर्म करोगे, कुछ खाना बनाओगे, है ना. उसके बाद बॉइलिंग वाटर, यानी कि वो उसमें बहुत जल्दी कोरोजन नहीं होना चाहिए. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज वी यूजुअली लुक for any metal when we want to make the utensil. अब बताओ. Iron, no. Iron undergo rusting very quickly, so no. Copper, yes. It is a metal, highly malleable, so can be transformed into different shapes, है ना. तो utensil बन सकते हैं, hard भी है और good conductor भी है. Sulfur non metal powder होता है, no. Coal तो possible ही नहीं, plastic नहीं, पिघल जाएगा. Wood, no, जल जाएगा. Next, cardboard, again no. So copper is the answer, है ना. लेकिन आंसर कैसे लिखेंगे? I would choose copper to make pan because it is hard solid metal. First, we are looking for hardness. Second, relatively less reactive than other metals. यहाँ पे और metal भी है, लेकिन उनके comparison में it is less reactive and very good conductor of heat. So these are the three properties we usually look for the utensil, for the metal that is being used for the utensil. Next, you are provided with 3 iron nails, each dipped in oil, water and vinegar. Okay, which iron nail will not rust and why? बेटा रस्टिंग के लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. व्हाट इज दैट? एयर एंड मॉइस्चर. बेसिकली एयर एंड वाटर, है ना. अब आपको ये देखना है कि कहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं. अगर देखो वाटर में डिप करेंगे तो ऑब्वियसली बोथ थिंग्स आर देयर, बिकॉज वाटर के अंदर एयर भी डिजॉल्व होती है. सो यहाँ पे तो रस्टिंग होनी ही है. विनेगर इज अ एसिड.
एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, तो एसिड में तो पक्का ही कोरोजन हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे रस्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, डिप्ड इन ऑयल, ऑयल के अंदर वाटर कंटेंट तो जीरो है और एयर भी नहीं होती है, ठीक है। सो हियर द फर्स्ट कंडीशन इज देयर वेयर रस्टिंग विल नॉट बी ऑब्जर्व। देखो, द आयरन नेल डिप्ड इन ऑयल विल नॉट फॉर्म रस्ट बिकॉज oil forms a barrier between the air and the iron nail surface, ठीक है। water is having dissolved air, rusting takes place in the presence of both water and air. vinegar is an acid which corrodes the metal surface faster, so rusting will take place in third case also. Understood? chalo, next question. How do the different properties of metals and non metals determine their use in everyday life? बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। मेटल्स हार्ड, बिकॉज दे आर हार्ड, उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम स्टैचू बना सकते हैं, उससे हम यूटेंसिल बनाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए वो वायरिंग में, इलेक्ट्रिक वायरिंग में यूज होता है ना। सो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको यूजेस भी बताने हैं। डबल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, देखो, मेटल बीइंग हार्ड सॉलिड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, है ना। metals are malleable and ductile, good conductor of electricity, so extensively used for wiring and electrical equipment, है ना। ductile, long wire में ductile, drawn into wire, ductile, D for D, ठीक है। so ductile होते हैं इसलिए वायरिंग में कन्वर्ट हो जाता, वायरिंग वायर बन सकते हैं उनके। metals are sonorous, that's why used in bells for ringing sound. next, metals are lustrous, that's why used for making jewelry. so देखो, उनके प्रॉपर्टीज के साथ यूज भी बताया है, ठीक है। सेम वी हैव टू डू फॉर द नॉन मेटल्स ऑल्सो। सो नॉन मेटल्स में गैशियस नॉन मेटल लाइक ऑक्सीजन हेल्प एनिमल्स एंड प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, यस। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन इज हेल्पफुल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, आयोडीन इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक्स, गॉट इट। सो दिस वे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, one of the methods of protecting iron from getting rusted is to put a thin coating of zinc metal over it, yes. Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer. बेटा, जस्टिफाई करना है, जहाँ पे जस्टिफिकेशन आ जाता है ना, वहाँ पे फिर आपका आंसर थोड़ा लंबा हो जाता है। देखो, पहले तो एक फर्स्ट लाइन देख लो, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। आयरन में रस्टिंग से बचाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इज कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ओवर इट, है ना। केमिकल मेथड से जिंक की लेयर, जिंक इज अ मेटल, उसकी लेयर हम आयरन के आर्टिकल पे चढ़ा देते हैं। उससे होता क्या है, आयरन आर्टिकल डजंट अंडरगो रस्टिंग, ठीक है। नाउ सल्फर भी रिएक्ट नहीं करता एयर और वाटर से, तो क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? इस आंसर को जस्टिफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ दिस जिंक। जिंक की कोटिंग से क्या हो रहा है आयरन आर्टिकल के ऊपर? बेटा, एक्चुअल में जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। सो वहाँ पे होता क्या है, जैसे ही एयर या मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में वो आर्टिकल आता है तो पहले जिंक विल रिएक्ट, फर्स्ट जिंक विल रिएक्ट। तो बेसिकली जिंक इज द सेक्रीफाइसिंग मेटल, हम उसको सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं आयरन के लिए, ठीक है। देखो, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल देन आयरन, सो व्हेन जिंक इज अप्लाइड ऑन द आयरन सरफेस इट प्रोटेक्ट्स आयरन बाय रिएक्टिंग फर्स्ट विद द वाटर एंड मॉइस्चर। अंडरस्टूड? नाउ अब सल्फर पे आ जाओ। But sir, no doubt that sulfur is non-reactive, it doesn't react much with the water and air, but it is a powder. Sulfur is in powder form. तो अगर पाउडर को आप आयरन आर्टिकल पे लगा दोगे तो इवन देन will it be able to form that proper barrier? No, पाउडर तो हवा से उड़ जाएगा। Yes, यहाँ पे देखो, though sulfur does not react with water, it can't be used for protecting iron because it is powdered solid form, which won't stay on iron surface for long time, and that's why sulfur can't be used. Understood? Chalo. Next question and the last one. An iron smith heats iron before making tools. Why is heating necessary in this process? बेटा, आयरन स्मिथ, लोहार, क्या करते हैं वो पहले लोहे को बिल्कुल गर्म करते हैं, दैट रेड हॉट आयरन, है ना, एंड देन दे हैमर इट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिफरेंट शेप्स। नाउ व्हाई दिस हीटिंग इज नेसेसरी? दिस इज द क्वेश्चन। बेटा, आयरन एट रूम टेम्परेचर इट इज वेरी हार्ड, इतना हार्ड होता है, उसको हैमर करोगे तो उल्टा हाथ में लग जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये आयरन स्मिथ क्या करता है वहाँ पर, उसको गर्म करते हैं। एज सुन एज दे हीट इट, इट बिकम्स सॉफ्ट, एंड व्हेन इट इज सॉफ्ट देन यू विल हैमर इट, देन यू कैन गेट द डिजायर्ड शेप ऑफ दैट आयरन, ठीक है। So what is the answer? Iron is metal which is very hard at room temperature. It in this state its shape can't be changed easily. On heating, iron becomes soft and can be beaten into desired shapes. That's why.
Understood? Chalo. With this, we are done with these all NCERT questions. I hope you were able to comprehend each and every question in an easiest way. But still, facing any difficulty or any doubt from this chapter, do comment. I will revert back there. ठीक है? चलो, take care and bye bye.